Today, we will be doing Chapter 4 from the Daily Knowledge Sutras by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Ji from the book An Intimate Note to a Sincere Seeker. The chapter's name is Only Speak Knowledge. Find comfort in conflicts. Only speak knowledge. Don't repeat anything bad that someone tells you about someone. केवल ज्ञान ही बोलें. ऐसी कोई भी बात ना बोलें जो बुरी हो, जो किसी के बारे में किसी और ने आपको बताई हो. And don't listen to someone who tells you that so and so said such and such thing about you. और ऐसे किसी भी बात को सुने भी ना जो किसी ने बोला कि इसने आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला है. When someone comes to tell you such things, discourage them. Don't believe it. जब कोई आपके पास ऐसी बातें बताने आता है तो उनको प्रोत्साहन मत करें, उन पर विश्वास भी ना करें. If someone blames you directly, don't believe in what they say. Just know that they are taking away your bad karma and let it go. अगर कोई तुम्हें सामने से आकर भी बुराई करता है तो भी उस पर विश्वास ना करो. बस ये जान लो कि वो ऐसा करके आपके बुरे कर्मों को ले रहा है और उसे जाने दो. And if you are one of the master's close ones, you will take all the blame of the world with a smile. और अगर आप उनमें से हैं जो गुरु के समीप हैं तो आप इस पूरी दुनिया के सारे आरोपों को हंसते हंसते ले बैठेंगे. When you blame someone, you take on their bad karma. When you praise someone, you take on their good karma. Surrender both good and bad karma to the divine and be free. जब आप किसी को आरोप देते हैं तो आप उनके बुरे कर्म ले लेते हैं, और अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उनके अच्छे कर्मों के भागीदार बन जाते हैं. अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को ईश्वर की चरण में समर्पित कर दो और मुक्त हो जाओ. Conflict is the nature of the world. Comfort is the nature of self. Amidst conflict, find the comfort. द्वंद्व इस दुनिया का एक स्वभाव है. शांति आत्मा का स्वभाव है. इस द्वंद्व के अंदर की शांति को पहचानो. When you are tired of conflicts and the games of the world, get into the comfort of the self. जब आप इस दुनिया के द्वंद्वों से थक जाएं, तब आप अपने अंदर विश्राम करें. When you are bored with comfort, get into the games of the world. जब आप इस शांति से बोर हो जाएं, तब आप इस दुनिया के खेलों में वापस घुस जाएं. If you are one of the master's close ones, you will do both simultaneously. अगर आप गुरु के समीप हैं तो आप ये दोनों एक साथ कर पाएंगे. People who love peace do not want to fight, and those who fight do not have peace. जो लोग शांत होते हैं वो लड़ाई नहीं करना चाहते, और जो लोग लड़ते हैं उनमें शांति नहीं होती. What is needed is to be peaceful within and then fight. चाहिए क्या? अंदर से शांति और बाहर से लड़ाई. Just trying to end a conflict only prolongs it. किसी लड़ाई को खत्म करना उसको और लंबा खींच देता है. Instead, face the conflict while seeking the comfort of the self. इसकी बजाय आप इस लड़ाई को सामना करें और अपने आत्मा के शांति में विश्राम करें. Does this ring a bell? This is the whole message of Bhagavad Gita. Krishna tells Arjuna to be centered in peace and to fight at the same time. क्या ये आपको याद आ रहा है? ये पूरा ज्ञान भगवद गीता का है,
जिसमें कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आप शांति में दृढ़ हो जाओ और लड़ाई भी करो एक साथ। God is alive in the world and has been putting up with all the conflicts throughout the ages. If God can put up with all these conflicts, you can too. ईश्वर इस जगत में जीवित हैं और इन सभी द्वंद्वों से सदियों से लड़ रहे हैं। अगर भगवान इन सभी द्वंद्वों को झेल सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। And the moment you agree to be with a conflict, it no longer appears as a conflict to you. जिस क्षण आप ये विश्वास कर लेंगे कि आप इस द्वंद्व के साथ रह सकते हैं, वो द्वंद्व आपको द्वंद्व लगेगा ही नहीं। The nature of this world is that once you resolve one conflict, another arises. इस दुनिया का यही स्वभाव है, जैसे ही एक द्वंद्व को आप सुलझा लेते हैं, एक और द्वंद्व खड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रशिया इज सॉल्व्ड एंड देन बॉस्निया इज इन ट्रबल। जैसे रशिया में एक सुलह हुई, उसी समय बॉस्निया में परेशानी शुरू हो गई। और यू गेट अ कोल्ड एंड यू गेट बेटर, देन योर बैक हर्ट्स, इट ऑल्सो गेट्स बेटर। And when your body is fine, then the mind goes. Things in this world run this way, don't they? जैसे आप सोचें, कभी आपको सर्दी हो जाए तो वो ठीक हो जाती है, फिर आपकी पीठ में दर्द होने लग जाए पर वो भी ठीक हो जाता है। जब शरीर ठीक है तो मन में कुछ परेशानी आ जाती है। ये दुनिया इसी तरह से चलती है ना? Without any intention, misunderstandings simply happen and conflicts arise. बिना किसी मंशा के कुछ ना कुछ द्वंद्व अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। It's not up to you to resolve them. Just be with them and be alive. ये आप पर नहीं है कि उन सभी द्वंद्वों को सुलझा लें। Just be with them. उनके साथ रहें और जीते रहें।